हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज एक सेशन लेकर के आया हूं एक्सजीएमटी के उन क्वेश्चंस के ऊपर जो पिछले यानी 28 जनवरी को स्लॉट 1 में आया था। स्लॉट 2 में उनके माइंड में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसका एक पूरा खाका मैंने तैयार किया कि अगर एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो लेट्स सॉल्व 3 क्वेश्चंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। अगर एक वहां पे मोड मीडियन मोड का क्वेश्चन है तो लेट्स सॉल्व 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस पे, डिविजिबिलिटी पे। 4 से 5 टॉपिक मैंने पकड़ा है and I actually wanted to have to solve more questions from the same topic, but uh, we are left with very less time. ठीक है, so let's start with this question. This question belongs to height and distance. Very common question. The previous one that was into the slot 1 was also very common question. So this is your: a car is being driven in a straight line at a uniform speed towards the base of a vertical tower. So this is your tower and this is the height. The angle of elevation changes from 45 to 60 degree. So when you are moving towards the tower, the angle of elevation will increase. जैसे से आप टावर के पास जाओगे, आप पास जाओगे, तो ऐसे होगा ना, angle of elevation will increase. So let me teach you what is angle of elevation and what is angle of depression. बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम चीज है in terms of value, but सेम चीज नहीं है in terms of concept. करेक्ट है? तो ये अगर टावर है and the person or let's say car, मान लो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक कार है, तो अगर ये कार जो है अभी फिलहाल इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आप देखेंगे, इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक अ 45 डिग्री एलिवेशन। ठीक है, 45 डिग्री पे ये अभी कार है। इट विल मूव फर्दर, इट विल कम टू दिस पोजीशन एंड देन द एलिवेशन, द एंगल विल चेंज, राइट? दिस विल बी, दिस इज योर 60 डिग्री। ओके, द डेफिनेशन इज कि आप जो है वर्टिकल टावर से एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू द ग्राउंड। इस लाइन को आप देखेंगे और ये वाला जो एंगल होता है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, but this angle is equal to this, right? So it is very very important. This is not angle of elevation, this is not angle of elevation. ठीक है, this is not angle of elevation. So this is your 60 degree, this is 45 degree. Now in the last session I forgot to tell you that you need to memorize 3 values of tan theta, at least 3 value: tan 30 degree, 1 by root 3, tan 45 degree, 1, tan 60 degree equal to root 3. Now let me tell you one thing. Keeping XGMT in mind, we need to just memorize a few values of sine and cos theta also, right? So in this question, when the car is traveling from this to this place, it takes 15 minutes. Okay, now if this is your h, let's name them. This is the tower x, y, this position is, let's say, z, and this position, let's call it z prime. So as you say, as you can see, xy by yz is equal to tan 45 डिग्री। तो ये आपको एकदम रट लेना है। tan 45 डिग्री का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर है। When the angle of elevation is 45 degree, that means height of the tower and the shadow both are equal. इसको आप रट के जाओ एग्जाम में। So xy is equal to yz. तो yz जो है, जो कार का जो डिस्टेंस था from the base of the tower, that will also be equal to xy, which is the height of the tower, right? So yz यहां से निकल करके आ जाएगा, आपका जो yz होगा वो h हो जाएगा। नाउ और क्या निकालना है हमें? yz प्राइम निकालना है। फिर से देखिए, xy यानी परपेंडिकुलर बाय बेस yz प्राइम इज इक्वल टू tan 60 डिग्री विच इज रूट 3. So that will give you yz prime as equal to xy by root 3, that means h by root 3. Okay, this is yz prime. Yz is h, yz prime is h by root 3. Now the car has traveled a distance of some distance which is not given, a distance of zz prime. What is zz prime? Now this distance is equal to yz minus yz prime, which is equal to yz कितना है भाई? h है, h minus h by root 3. तो ये डिस्टेंस अभी कार ने तय किया, यानी कार यहां से यहां आई है। कार की जो पोजीशनिंग है वो z पे थी, z से z प्राइम पे आई है, यहां से यहां आई है, करेक्ट है?
यहां से यहां आई है और यहां से यहां जाना है, z प्राइम से y जाना है। दिस हैज बीन कवर्ड, दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड, करेक्ट है। इसमें लगा है 15 मिनट्स, इसमें लगेगा t टाइम, ठीक है। टाइम उतना ही लगेगा जितना डिस्टेंस है। रीजन क्या है, आपका स्पीड यूनिफॉर्म है। जब स्पीड यूनिफॉर्म होता है तो डिस्टेंस और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इस मामले में क्या हो जाएगा, आपका जो टाइम है 15 मिनट डिवाइडेड बाई टी इज नथिंग बट द डिस्टेंस, दैट मीन्स जेड जेड प्राइम बाई जेड प्राइम वाई, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, 15 बाई टी इज इक्वल टू जेड जेड प्राइम इज h माइनस h बाई रूट थ्री और yz prime is h by root 3. This is your case. Okay. Now let me solve it. So if I multiply this by root 3, the numerator and denominator both, if I multiply this by root 3, what do I get? I get root 3h minus h divided by h. I multiplied by root 3 in the numerator and denominator. Okay, so if you take h common here, you get root 3 minus 1 by 1. So this is your the value, final value. So 15 by t is equal to root 3 minus 1. So the value of time will be 15 by, this is the time taken, 15 by root 3 minus 1. So maybe possibly ये ऑप्शन में मैच ना करे क्योंकि फिर वो उसको रैशनलाइज करेगा। जगह की कमी है यहाँ पर अभी, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आप ये मुझसे पूछ भी सकते हैं और आप बेसिकली देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन पार्ट जो है वो अभी हमारे पास करने का वक्त नहीं है। वी हैव 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। A bird sitting on the top of a tree sees a mouse on the ground at some distance from the base of a tree at an angle of depression of 30 degree, ठीक है। यानी एक पेड़ है, इसके ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है और इसने क्या देखा, एक चूहे को देखा। एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, ये देखिए, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बोलेगा फिर से ये एंगल है, देखिए, यानी जब बर्ड ऊपर से नीचे देखेगा तो ये 30 डिग्री कहलाएगा। इसको एंगल ऑफ क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। और जब नीचे से कोई चीज टॉप ऑफ द ट्री को देखेगी तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सो इन एवरी केस द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, बट नाम अलग है, वैल्यू सेम है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिजिक्स में, ठीक है, नाम अलग अलग होते हैं बट सेम होते हैं। तो वैसे ये भी है। तो इसने जब देखा, बर्ड ने जब देखा यहाँ पे माउस को, यहाँ पे मान लीजिए माउस है, उसने देखा तो वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी। ओके, इट फ्लाइज टू कैच द माउस एंड देन फ्लाई टू अनदर ट्री, फिर यहाँ से वो जा रही दूसरे ट्री में, विच इज 2 मीटर टॉलर देन द प्रीवियस ट्री एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ 60 डिग्री पे ऐसे जाएगी दूसरे ट्री पे, दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ओके, और ये 2 मीटर ज्यादा, तो इसको अगर आप x मान लें तो ये x प्लस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस बेस को आप मान ले p, इस बेस को आप मान ले q। नाउ tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, x इज द परपेंडिकुलर बाय बेस pm, x by pm is equal to tan 30 which is 1 by root 3, and the second equation x plus 2 by mq perpendicular by base is equal to tan 60 which is root 3. Now let me read the question once again. A bird sitting on the top of a tree, दो triangle बन रहा है, sees a mouse on the ground, ठीक है, दौड़ के वो आता है at some distance from the base of tree, angle of depression 30 degree, it flies to catch the mouse and then fly to the other tree. Okay, what is the total distance traveled by the bird if the mouse was initially 50 root 3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री? सो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 50 रूट 3, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 50 रूट 3। ओके, तो अगर पीएम की जगह हम बिठा दें 50 रूट 3, ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 50 रूट 3 बाई रूट 3 यानी कि 50, x हमारा 50 मिल गया। सो दिस इज योर 50, ये 50 मिल गया हमारा x। सो दिस मीन्स ये आपका 52 है। ओके, नाउ क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो बर्ड उड़ करके आ रही है, मान लीजिए उसको मैं नाम देता हूं n, तो n से m का डिस्टेंस ये पूछा है और m से लेके मान लीजिए यहां नाम है o, तो m से o का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब
इसलिए मैंने कहा था कि थोड़े बहुत साइन और कॉस के भी फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। अब देखिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी x 50 बाई हाइपोटेन्यूज यानी mn। सिमिलरली साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 52 बाई mo। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो यहां अगर हाफ बिठा देंगे, हाफ इज इक्वल टू 50 बाई mn, तो आपको mn मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके विच इज 100। और अगर उधर आप बिठाते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 52 बाई mo, तो वहां से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके mo की वैल्यू हो जाएगी 52 इंटू 2 104/√3। ठीक है, अब इन दोनों का सम आपका आंसर है, एक तरफ 100 आ रहा है, एक तरफ 104 प्लस √3 आ रहा है, सो 100 प्लस ये ऑप्शन में था जहां से मैंने क्वेश्चन कॉपी किया है, वहां पे ये ऑप्शन में था आपका आंसर। ठीक है, द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। आपको 50√3 दिया था, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, आपको ये एंगल दिया है 30 डिग्री, तो आप जो है x निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 50। जब 50 निकल जाएगा तो आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज पढ़ा दूं, मैं आपको एक चीज पढ़ा दूं, XCMT दिन पक्का काम आने वाला है। आइए चलिए पढ़ा दूं, याद आ गया मेरे को। तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल मान लीजिए ऐसा हम बनाएं जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल हो, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वहां पे 99% चांस है कि आप ये वाले केस में जाकर के गिरोगे, जहां पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई एक चीज 45 डिग्री दे दे। द ट्राइंगल इज ऑलरेडी अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट एंड डिस्टेंस की कहानी में जो ट्राइंगल आपको मिल रहा है दैट इज ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल, एंड प्लस द एडवांटेज इज कि अभी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया। नाउ 45 डिग्री होने की बुनियाद पे द थर्ड एंगल विल आल्सो बिकम 45 डिग्री। नाउ इस केस में क्या होगा कि ये दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएंगे, और ये जो है √2, मैं इसको बोलता हूं क्या पता है, स्क्वायर का हाफ। एक स्क्वायर का हाफ है ये। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो जो है ये रेशियो होगा, ये आपको याद करना है। आई सीरियसली डोंट थिंक कि ये बहुत ही मुश्किल है कंपेयर टू memorizing the values of sin theta, cos theta, tan theta, tan 30, tan 60, tan 45. It's much better that you memorize the ratio of the triangles. Now second case देखिए, एक और बहुत ही सिंपल सा केस है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये 60। एग्जाम में अगर ये पलट जाए तो तुम भी पलट देना। ठीक है, तुम्हें याद होना चाहिए 60 का सामने वाला जो है ना, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 60 के सामने वाला जो है ध्यान रखना वो √3 है, और 30 के सामने वाला जो है ना वो 1 है, ये 1 है, ये 1, ये √3, परपेंडिकुलर और बेस। जब परपेंडिकुलर बेस ऐसे हैं तो हाइपोटेन्यूज इस रेशियो में आएगा। ठीक है, इंटू 2। आप पाइथागोरस लगा के भी देखोगे, वेरीफाई करोगे तो ये बात सही है। तो ये जो चीजें हैं ये आप याद कर लें कि परपेंडिकुलर इज टू बेस इज टू हाइट का क्या रेशियो होता है इन दीज टू ट्राइंगल्स। यही एग्जाम में आने वाला है, 30 60 90 तो ऑलरेडी है, 45 डिग्री, यही आपको एग्जाम में आने वाला है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर कल की डेट में ये पलट जाए, यानी 60 उधर आ जाए और 30 उधर आ जाए, ठीक है, इधर 60 आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे 60 बोला, 60 के सामने वाले को कर दीजिएगा √3, ठीक है, और ये एंगल ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा क्योंकि ये पहले से राइट एंगल है। 30 के सामने वाले को कर दीजिएगा 1, और ये आपका हो गया 2। ठीक है, तो ये चक्र आप याद रखिए। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3, और ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम अगर दिमाग में है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 क्यों आ रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी योर √3:1:2। बस आप इसको याद करके जाएं, टेंशन फ्री। एक बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लेट्स डिस्कस, जब बात XCMT की हो रही है, वी कैन ऑलवेज सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ पोल बीइंग ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एंड 330 डिग्री, ये 30 डिग्री है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर फ्रॉम द। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है कि ये जो एक पोल है वो टूट गया है। ठीक है, टूट जाने के, यहां से टूट गया है, टूट जाने के बाद वो गिर गया है, गिर गया तो ऐसे गिरा होगा,
ठीक है, और ये एंगल कितना बता रहा है वो 30 डिग्री, बस प्रॉब्लम सॉल्व। 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और ये 2, रेशियो निकल गया। अब क्या बोला है 21, कौन 21 है उसको देखो, आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होगा 1:√3:2, ये है, ठीक है, केयरफुली, ओके ठीक है। अब बोलता है द डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी ये डिस्टेंस 21 दिया है। अब टेंशन हो रहा है सर ये डिस्टेंस 21 मीटर दिया, आप क्या करें, सबको डिवाइड करो √3 से, तीनों रेशियो को, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा √3/√3 और ये हो जाएगा 2/√3। अब सबको मल्टीप्लाई करो 21 से, तो ये हो जाएगा 21/√3, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 42/√3। तो निकल गया आपका आंसर, आपका परपेंडिकुलर है 21/√3 और ये है 42/√3, यानी जो पोल का टोटल लेंथ है उसके दो हिस्से हैं। जब पोल टूट के गिरा है तो उसके दो हिस्से, एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है। पोल टूट के गिरा है ना, दो हिस्से हैं, एक हिस्से का लेंथ है 21/√3 और दूसरे का लेंथ है 42/√3। दोनों को ऐड करोगे आएगा 63/√3। अब 63 जो है वो 21 इंटू 3 है, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखता हूँ, नीचे एक √3 है वो कैंसिल करेगा और आपका आंसर आ जाएगा 21√3 मीटर। डन डील, डन डील, डन डील। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, डीजे 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 डीजे। जहां अभी जो XGMT के स्लॉट 1 में जो क्वेश्चन आया मीन मीडियन मोड का, जो प्रीवियस वीडियो में है, तो वो क्वेश्चन जब मैं अपनी किताब में ढूंढ रहा था तो अपनी किताब में मुझे वो क्वेश्चन मिल गया, एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज़ैट 2011। ज़ैट 2011 में सबसे ज्यादा मैंने स्कोर किया क्वांट में, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर द डे, इट वाज 2 जनवरी, रांची के DAV हेहल में मैं लिखा था वो एग्जाम, लेकिन मुझे याद नहीं था वो क्वेश्चन ज़ैट 11 का है जो पिछले स्लॉट में सॉल्व हुआ। तो उसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन पड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन उस जमाने में IIT वाले अपना MBA का एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे, वहां था, यानी जेमेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन साथ साथ हैं, तो मेरा दिल कहा कि जिस इंसान ने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है अगर वो उसी बुक को रेफर करेगा तो सेकंड स्लॉट में यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग की किस्मत है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि इसमें क्या कह रहा है देखिए, इन द डेटा सेट द अरिथमेटिक मीन इज सेम एज द मीडियन, और सबसे आसान कर दिया अज्यूम x मोर देन इक्वल टू 8 कह करके। आप जब x को 8 से ऊपर कर देंगे तो ये भाई साहब मुझे तो बिल्कुल भी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है और x है, और x 8 से बड़ा है, तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। जब आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो मिडिल नंबर इज द मीडियन, ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। 7 आपका मीडियन हो गया। क्वेश्चन कहता है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन। पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मीन इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन विच इज द एवरेज, मीन इज नथिंग बट द मीडियन। सॉरी, इस क्वेश्चन में मीन मीडियन है, लेकिन मीन होता है क्या, एवरेज होता है। तो आप एवरेज ले लो ना पूरा सिस्टम का, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, x है, इनका एवरेज जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 7। द मीन इज द मीडियन इन दिस क्वेश्चन। सिंपल हो गया। तो आप लोग डिवाइड कर लो 2 + 5 + 7 + 8 + x बाई 5। मेरे पास एक टेक्निक है, मैं वो लगाता हूँ। 2 जो है -5 -2 0 +1, सो -5 -2 -7 प्लस -7 को +6 यानी ये 13 होना चाहिए। मेरे हिसाब से x की वैल्यू 13 आ रही है। आप ये कैलकुलेशन करेंगे 2 + 5 + 7 + 8 + x डिवाइड बाई 5, दिस शुड बी इक्वल टू 7 अगेन, ठीक है। ये आपका मीन है, लेफ्ट हैंड साइड मीन है, राइट हैंड साइड जो है वो आपका मीडियन है, ठीक है। दोनों को आप इक्वल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जबर है, क्या है, जबर। First 45 numbers are placed in 5 groups of 9 each. First 45 natural numbers are placed in 5 groups of 9 each. Now median of each of these groups has been calculated. What is the maximum possible mean? कल मैंने ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। मीन ऑफ द मीडियंस ऑफ दीज 5 ग्रुप्स, थोड़ा सा
राहत की सांस मिली है हमें, साई ऑफ रिलीफ। अगर हम बात करें कि भैया यहाँ पे मीन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग बिंज वॉच करते हो, पढ़ाई लिखाई 22:30 है, बस यूट्यूब पे वीडियो देखते हो। लेकिन टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स आप वीडियो को रोके इसे बनाएं, जिद करके बनाएं, ना बने कॉन्टैक्ट करें, पर इस वीडियो को आगे ना देखें जब तक ये चीज समझ में ना आए। 45 नेचुरल नंबर्स क्या होता है भैया? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, है ना? कहां तक जाएगा? 45 तक जाएगा। इसको हमें 5 ग्रुप में बांटना है। ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 1 से 9 लेना है, फिर 10 से 18 लेना है, फिर 19 से 27 लेना है, फिर 28 से 36 लेना है, फिर 37 से 45 लेना है। ऐसा नहीं लिखा है। आप अपनी मर्जी का नंबर लीजिए, आप अपनी मर्जी का नंबर लीजिए, बट ट्राई टू मैक्सिमाइज द मीडियन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देने में आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। मीडियन होता क्या है? जब आप इस 45 नंबर्स को 5 ग्रुप में बांटेंगे, थिंक ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है? आपको काम ही मिला है कि इनमें से आप 9 नंबर्स को चूज करो। कितने नंबर? 9 नंबर्स आउट ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। मुझे पता है आप सब इंटेलिजेंट हो और ये सवाल मन में बना रहे हो आप, ठीक है? 1 से लेके 45 तक का नेचुरल नंबर है, उसमें से आपको 9 चुनने बोला है, 9 चुनने बोला है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही शर्त है कि उस ग्रुप का मीडियन जो है मैक्सिमम। मीडियन को कैसे मैक्सिमाइज करूं? कैसे मैक्सिमाइज करूं? नीचे वाला जो 4 नंबर है वो कुछ भी ले लो, ऊपर वाले 4 नंबर आप कुछ भी नहीं ले सकते ना। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये सब इससे ज्यादा हो ये जरूरी है, क्योंकि मीडियन जो होगा वो बीचों बीच का नंबर होगा। करेक्ट है? तो 9 नंबर में से टॉप का जो 4 नंबर है वो हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? 45, 44, 43 और 42 के सिवा। और क्या लोगे? क्या लोगे? सोचो क्या लोगे? क्या लिया जाए? कुछ नहीं ले सकते आप, कुछ नहीं ले सकते इसके अलावा, ठीक है? तो यानी अगर आपको सिर्फ एक ग्रुप की बात कही जाए तो उसका हाईएस्ट मीडियन, इस ग्रुप का हाईएस्ट मीडियन आपको निकल करके आएगा 41, और आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये नीचे में है वहां पे छोटे नंबर बिठा दो, 1 2 3 4 टाइप का कुछ नंबर बिठा दो, ठीक है? मैक्सिमाइज किया आपने एक ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें 9 नंबर थे उसका मीडियन। अब यही सवाल आपसे पूछा जाए कि भैया यही काम आपको सेकंड ग्रुप में करना है, एक और ग्रुप ले आओ, इसमें भी आपको मैक्सिमाइज करना है। क्या करोगे? बचे हुए नंबर में से आपके पास कोई चारा नहीं है, 40 रखोगे, 39, 38, 37 और 36। 36 आपको यहां मीडियन लाएगा। नीचे कुछ भी भर दो आप, 5 6 7 8 कुछ भी भर दो। यहाँ का हाईएस्ट, सॉरी यहाँ का मैक्सिमम मीडियन 36 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस ग्रुप, इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए ये वीडियो अगर देख रहे हो तो बात समझ में आएगी नहीं, और आप मुझे फोन करना मत कि आप समझा दो मेरे को, अनलेस यू ट्राई अ लॉट। तो पहला जो फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसका मैक्सिमाइज्ड मीडियन जो होगा वो 41 होगा। जो सेकंड ग्रुप है उसको जो मैक्सिमाइज करोगे उसका जो मीडियन होएगा वो 36 होगा। इन दिस सिमिलर फैशन जब आप थर्ड ग्रुप को लेके चलोगे तो थर्ड ग्रुप का जो मीडियन होएगा वो थर्ड ग्रुप का मीडियन कहां से स्टार्ट करेंगे हम? 35 से। 35, 34, 33, 32, 31 होएगा, 31 होएगा। नाउ आई सी अ पैटर्न, आई सी अ पैटर्न। क्या पैटर्न दिख रहा है मेरे को? कि जो वो 5 ग्रुप थे ना, 9 नंबर वाले, उन सब का मीडियन 41 आ रहा है, 36 आ रहा है, 31 आ रहा है, 26 आ रहा है और 21 आ रहा है। इससे ज्यादा आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, ऐसा किताब के सोल्यूशन ने कहा। मैंने इसको 10 से 15 मिनट ट्राई किया है। अगर आपके पास कोई और उपाय निकल करके आता है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर डिस्कशन। मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि किताब गलत साबित हो जाए और आप सही साबित हो जाओ, है ना? आपका सही होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो यहां पर इन 5 नंबर का अब निकालना है मीन। मेरे दिमाग में पता है, व्हेन आई लुक्ड एट द क्वेश्चन यस्टरडे, मेरे माइंड में एक बात आई थी। मुझे लगा ना कि मीडियन के मीडियन को मैक्सिमाइज करना है।
मीडियन के मीडियन को। तो आप सब कमेंट में जवाब देंगे कि अगर मीडियन का मीडियन यानी यहां पर अगर मीडियन होता तो आंसर क्या होता, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल मीडियन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ दीज 5 ग्रुप्स। ठीक है, क्या आंसर वहां भी 31 होता? तो इन पांचों का जब आप मीन निकालेंगे तो ये पांचों नंबर जो है एपी में है, इनका जब आप मीन निकालेंगे यानी एवरेज निकालेंगे तो आपका आंसर 31 आएगा। सो मैक्सिमम मीन। बच्चों प्लीज इसको ट्राई करो और हम सबको, मुझे और किताब को गलत साबित करो। मैक्सिमम मीन जो है वो 31 आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर 31 है। ठीक है, प्रूव अस ऑल रॉन्ग। ठीक है, हम सबको आप गलत साबित करें, आप नौजवान हैं। टपोरी क्वेश्चन, consider the box diagram given below. Each of the boxes in the gray cell is the average of the cell on the right and the cell on the left. What is the value of x? एक बार Z 2008 में एक ऐसा केस आया था जहां पे इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एक डिजाइनदार सीढ़ी बना हुआ है और उसमें जो है एक नंबर दूसरे नंबर का सम वगैरह कुछ कुछ है। यहां पे बोलता है कि जो ग्रे सेल है, आई डोंट नो द कलर ऑफ दिस, मुझे वो है कलर वाली बीमारी है। ठीक है, ये जो है यहां जो नंबर होएगा ना वो इन दोनों का, इसका और इसका एवरेज होएगा, और ये जो नंबर होएगा वो इसका और इसका एवरेज होगा, और ये जो नंबर होएगा वो इसका और इसका एवरेज होगा। ये तरीका है। ठीक है, अब क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, चलो मजेदार क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज मारो, सॉल्व करो, है ना। सॉल्व कर लिया तो एक्सजीएमटी में क्वांट्स में आपकी 90% तय है, करेक्ट है। तो ये जब x है भाई साहब मेरा, तो ये 26 दो नंबर का एवरेज है, दो नंबर का, यानी यहाँ पे जो भी सेल, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, ठीक है, उनका सम और इसका सम इन दोनों का सम अगर 52 हो जाए, मान लो यहाँ पे एक नंबर है 52 माइनस एक्स, मैंने अज्यूम किया कि यहाँ नंबर क्या है 52 माइनस एक्स, तो ये 52 माइनस एक्स और ये x, इन दोनों का सम क्या होएगा 52। 52 बाई 2 क्या होगा 26, करेक्ट है। तो अगर ये x है तो इस नंबर को तो 52 माइनस एक्स होना मांगता, होना मांगता, एकदम जरूरी है कि भैया आप दोनों नंबर का एवरेज रहें, करेक्ट है। उसके बाद इन दोनों नंबर का एवरेज निकालिए यानी 8 प्लस 52 माइनस एक्स, ये दो नंबर है बाई 2, तो 52 और 8 कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस एक्स बाई 2 यानी 30 माइनस एक्स बाई 2, ये नंबर यहां आना चाहिए, 30 माइनस एक्स बाई 2 नंबर यहां आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और हिंट रह गया है, इन दोनों का एवरेज ये बीच वाला है। ठीक है, यानी 30 माइनस एक्स बाई 2 एक नंबर प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 52 माइनस एक्स। अगर मैं एक और वेरिएबल ले लेता तो आसान हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, यानी 30 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 26 इज इक्वल टू 104 माइनस 2x। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है मेरे से, है ना, जब रिकॉर्डिंग पे होती चीजें। पिछले वाले स्लॉट 1 के सोल्यूशन में, लास्ट क्वेश्चन में जहां पे पॉलीगन का क्वेश्चन था और उसमें आंसर 4 के बजाय मैंने 5 बोल दिया है। ठीक है, चलता है यार, है ना। तो ये 2x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स बाई 2, इधर आपका 30 और 26 56 उधर चल जाएगा, सो 104 माइनस 56। ठीक है, प्लस माइनस आप देख लेना, सो दिस विल गिव मी 3x बाई 2 और इधर 106 होता तो 48 आंसर आएगा, तुम चेक करना 48। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे लगता है 32 लग रहा है मुझे, आप चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ इस तरह जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है। आप एक दूसरा मेथड लगाइए, इस वाले सेल को y अज्यूम करके और इस वाले सेल को 52 माइनस एक्स अज्यूम करके आप ट्राई कीजिए, शायद जल्दी से बन जाए, आसानी से बन जाए। अगर x की वैल्यू 32 है तो इसकी वैल्यू, चलो इसको भर के देखते हैं, x की 32 बोल रहा हूँ ना, ठीक है, अगर ये 32 है तो इसको होना पड़ेगा 20 अगर ये 8 और 20 है तो ये होना पड़ेगा 14।
चलो अपने आप चेक हो जाएगा। तो 8 और 20 का एवरेज 14, ओके टिक। 14, 26, 40 का एवरेज 20, ओके टिक टिक, एकदम सही है। हमारा आंसर 32 सही है। वहां पे तो ऑप्शन होएगा भाइयों। दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड बाय द क्वेश्चन इन स्लॉट 1, जहां पे आया था कि 100 नंबर्स में से कितने नंबर ऐसे हैं कि जो 2, 3, 5 से डिविजिबल ना हो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे आफ्टर दैट वीडियो वेंट वायरल के सर ये तो यूलर्स का फॉर्मूला है। यूलर्स का जो फॉर्मूला होता है वहां पर 100 के अंदर जो प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, 100 किससे बना है? 25 और 4 से बना है, जो कि 2 और 5 के पावर्स हैं। तो वो यूलर्स नंबर का फॉर्मूला कहलाएगा, है ना। हमारे क्वेश्चन में 2 भी था, 3 भी था और 5 भी था। तो 2 और 5 के अलावा वहां पे 3 मौजूद है। सो ये यूलर्स नंबर का फॉर्मूला नहीं है। देखने में हम शक्ल दोनों हैं, अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर डिविजिबल बाय 3? आइए कर लेते हैं। कौन जाने किस्मत 9 फरवरी को जो है आपको ये लग जाए। आज ही एडमिट कार्ड आया है। तो 1 से लेकर 1000 का नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल आपको निकालना है। कितने नंबर होंगे? तो सिंपल सा लोग कहते हैं कि 1000 को आप 3 से सीधा सीधी डिवाइड कर दो, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो। आपको पता है कि जो 3 के मल्टीपल होंगे उनकी शक्ल देखने में कैसी होगी, आइए देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 चूज कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इत्मीनान से क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मिलता जुलता क्वेश्चन वहां आने वाला है, और ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। कहां तो जाएगा लास्ट में? 990, 993, 996 और 999, ठीक है ना। अगर मैं इनमें से 3 कॉमन ले लूं तो मुझे दिखाई क्या देगा? 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में क्या दिखाई देगा? 330, 331, 332 एंड 333। तो पहला सवाल का आंसर आएगा 333, खत्म। दूसरे सवाल का आंसर आएगा 200, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर डिविजिबल बाय 3? दिस मच, 5, दिस मच, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ 3 एंड 5 यानी उस क्वेश्चन में और लगा था 2, 3 और 5। इस सवाल में बोथ 3 एंड 5 है, यानी मल्टीपल ऑफ 15। अब इसकी शक्ल देखी जाए। मल्टीपल ऑफ 15 की शक्ल देखोगे तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225 जो 15 का स्क्वायर है, सो ऑन। लास्ट में 900, 900, उसके बाद 915, उसके बाद 930, 960, 975 एंड लास्ट वन 990। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि 1000 को 15 से डिवाइड कर दो, कोशेंट ले लो, रिमाइंडर छोड़ दो। तो 990 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करोगे, मुझे लगता है आपका आंसर 66 होना चाहिए। पहला क्वेश्चन का आंसर था 333, दूसरे का आंसर था 200, तीसरे का आंसर है 66। इन तीनों आंसर को आप याद रखना, काम आएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 3 बट नॉट 5, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मुझे लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट का तड़का है इसमें, कॉन्सेप्ट का तड़का है। इस जर्रा बराबर भी आपको अगर डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आपको बहुत डेंजर तकलीफ होने वाली इस क्वेश्चन में। मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 5 कैसे निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे? सोचो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में लिखो कैसे निकालोगे। आपको मल्टीपल ऑफ 3 पता है ना, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 5 भी पता है। क्या करोगे? मल्टीपल ऑफ 3 माइनस मल्टीपल ऑफ 5 कर दे, यू आर गोइंग टू गेट द रॉन्ग आंसर। अगर आपने इसको माइनस किया आपको गलत आंसर मिलेगा। सही आंसर के लिए मल्टीपल ऑफ 3 माइनस मल्टीपल ऑफ 15 करना है। हम मल्टीपल ऑफ 3 माइनस मल्टीपल ऑफ 5 क्यों नहीं कर सकते हैं? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए
मल्टीपल ऑफ 3 देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है एंड सो ऑन। और मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है एंड सो ऑन है। जरा गौर से देखो, मल्टीपल ऑफ 3 में और मल्टीपल ऑफ 5 में अगर आप माइनस कर दें तो आप इसमें से यानी ऊपर वाले सेट में से इसको निकाल रहे हो, माइनस कर रहे हो। भैया ऊपर वाले सेट में तो 5 मौजूद है ही नहीं। बात समझ आ रही है? ऊपर वाले सेट में तो 10 मौजूद है ही नहीं। तो मल्टीपल ऑफ 3 वो पहले है, आपको मल्टीपल ऑफ 3 में से मल्टीपल ऑफ 5 चुनना है। मान लीजिए मुझे इंडियन में से, नहीं एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा है, इंडियन में से साउथ इंडियन चुनना हो, ठीक है? तो मल्टीपल ऑफ एशियन में से साउथ इंडियन निकालना हो। एक रूम में 40 लोग हैं, वो सब एशिया के हैं, एशिया के हैं। आपको चूज करना है कौन कौन साउथ इंडियन है, दे आर ब्रिलियंट राइट, उनको चूज करके आपको अवार्ड देना है कि साउथ इंडियन लोग हैं, इनको अवार्ड दे दो भैया, ठीक है? तो if they are South Indian, they need to be Indian first, correct? If they are multiple of 5, they need to be multiple of 15. क्यों? क्योंकि वो जो नंबर है ना जिसमें आप ढूंढ रहे हो वो पहले से ही मल्टीपल ऑफ 3 है, वहां आपको मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा ही नहीं, जो मिलेगा वो मल्टीपल ऑफ 15 होगा। आइए देख लीजिए आपके आंखों के सामने, आप मल्टीपल ऑफ 3 लिखें, मल्टीपल ऑफ 3 लिखिए आप, 3, 6, 9, 12, 15, ढूंढो, मिला? 18, 21, 24, 27, 30 मिला? जब 3 के मल्टीपल के लिस्ट में आप 5 के मल्टीपल को ढूंढने गए तो वो 5 के मल्टीपल नहीं थे, मतलब थे, वो 15 के मल्टीपल थे। सो इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 इज गोइंग टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज, राइट? यहां पर क्या करना होगा? मल्टीपल ऑफ 3 माइनस मल्टीपल ऑफ 15। सो ये था 3, 33 और ये था 66। दिस मस्ट बी आंसर। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आप उसको देख लेना, कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन, 15 बट नॉट बाई 30, ठीक है? 15 का मल्टीपल चाहिए, 30 का नहीं चाहिए। आप 15 का मल्टीपल लिखो तो सही, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, आप निकालो 30 के मल्टीपल, ये देखो, निकालो निकालो निकालो। यानी आपने एक्सेप्ट किया ऑड मल्टीपल्स ऑफ 15, आपने एक्सेप्ट किया, आपने रिजेक्ट किया इवन मल्टीपल्स ऑफ 15। चूंकि मल्टीपल्स ऑफ 15 की संख्या नंबर्स 66 है, इसीलिए दोनों भाइयों का बंटवारा बराबर बराबर हुआ, यानी इसको मिला 33 नंबर और इसको मिला 33 नंबर। अगर ये नंबर ऑड होता तो बंटवारा बराबर नहीं होता। 15 का जो मल्टीपल है 1 से लेके 1000 तक को इंसिडेंटली 66 है। जब आप इनमें से इवन और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 15 को निकालने की कोशिश करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेट एक वर्ड है ना, ग्रीगेरियस आया था ना, ग्रेक से बना है, कांग्रेगेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है? तो जहां GREG आ जाए मतलब भीड़ लगाना, ग्रेगेरियस है ना, नॉर्मन लेविस की बुक में लिखा है। तो ये सब जहां GREG आ जाए, रूट वर्ड है, वहां भीड़ लगाना। और उसी तरह सेग्रीगेट है, लेकिन ये एकमात्र वर्ड जहां भीड़ तो लगा रहे हो लेकिन कैटेगराइज करके लगा रहे हो, कम्युनिटी वाइज बांट दे रहे हो। सो सेग्रीगेट जब करोगे आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ 15 को अलग, इवन मल्टीपल्स ऑफ 15 को अलग, बराबर बंटवारा होगा किसका? 66 मल्टीपल्स का बराबर बंटवारा होगा, है ना? तो 33 और 33, आपने इसको अगर निकाल दिया तो आपका आंसर आएगा 33। लेकिन आपके दिमाग में सवाल चलेगा, सर मान लीजिए ये 67 होता तो, मान लीजिए 67 होता तो क्या? मल्टीपल्स ऑफ 15 तो कैसे बांटते ऑड और इवन में? देखना शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत ऑड से हो रही है ना, तो इसका खात्मा
ऑड पे होगा। क्यों? क्यों सर? क्योंकि 67 ऑड है ना, तो ऑड से शुरू होकर ऑड पे खत्म होगा। तो उस केस में ऑड मल्टीपल्स ऑफ 15 जो है वो एक ज्यादा होगा, और इवन मल्टीपल्स ऑफ 15 जो है वो एक कम होगा। जिससे शुरू होता है उसको एज मिलता है, जिससे शुरू होता है उसको एज मिलता है। छोटी बात लगती है ना? आप लोगों को लगता है ना कि ये तो छोटी बात है? नहीं। देख रहे हो हम कहां खड़े हैं? ठीक है। इसीलिए दिक्कत होती है एग्जाम्स में, इसीलिए एकदम कोर पे देखूं तो हम सब वी वांट बेबीज विदाउट लेबर पेन। ठीक है, तुम कोर पे यही आपकी जो नाजायज ख्वाहिशात है कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, 4-5 मॉक लगा लूं चला जाऊं वहां से। बच्चे मॉक से तैयारी कर रहे हैं, मॉक से तैयारी करें। मॉक इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, दैट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। यू कैन नॉट प्रिपेयर विद द मॉक्स। ठीक है, अब आप कहोगे सर पहले बोलना था, मॉक खरीदने से पहले बोलना था। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। When a number is divided by 45, the remainder is 6. When a number is divided by 45, the remainder is 6. Find the remainder when the same number is divided by. एक नंबर को 45 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर 6 आया है, तो वो नंबर होगा कैसा? सोचो। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो नंबर 45 के प्लस 6 के फॉर्म में होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो नंबर 51 होएगा, सर वो नंबर 96 होगा, सर वो नंबर 141 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, एक नंबर 141 होगा ना, 135 है ना 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स 186, वो नंबर 186 होगा। यानी असलियत में हो क्या रहा है? असलियत में हो क्या रहा है? 45 उसके अंदर है, ठीक है, 45 के कुछ टुकड़े मौजूद है, कितने टुकड़े नहीं पता, और 6 एक्स्ट्रा है। मैं ना एक पिक्चर बनाया करता था बच्चों को समझाने के लिए, मैं बनाता हूं। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई एम गोइंग टू बी ऑन दिस। मेरा ये तमन्ना है कि तुम्हें ये पिक्चर समझाऊं मैं। 45 का मल्टीपल मतलब ये देखो, यहां से यहां 45 है, यहां से यहां 45 है, ऐसे कुछ खंड हैं। खंड समझते हो हिंदी में? खंड, हिस्सा, भाग, पार्ट्स। ऐसे कुछ पार्ट्स हैं 45 के। कितने? डॉट 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 मालूम निखे, डॉट 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 मालूम निखे। यहां फिर एक खंड है, ठीक है, बीच में मैंने डॉट डॉट मार दिया कि बीच में यहां बहुत सारे खंड, 45 45 45 45 45 45 45 45 45 प्लस 6, प्लस 6, ये रहा 6, बाकी सब 45 है। तो वो नंबर कुछ इस तरह होगा, उसके अंदर ढेर सारे 45 होंगे और एक्स्ट्रा 6 होगा। अब बोलता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 15। अब जब तुम 15 से डिवाइड करोगे उसी नंबर को, तो जो खंड है ना, जो आपका 45 जो पार्ट्स था, उसके 3 हिस्से हो जाएंगे, उस खंड के 3 हिस्से। क्योंकि भैया 15 3 45 है, 15 3 45 है, तो जो 45 है उसके अंदर 15 15 15 3 बार आएगा, तो हर 45 के अंदर 3 15 है। करेक्ट है? तो हर खंड के अंदर 3 खंड हो जाएगा। करेक्ट है? लास्ट में भी ऐसे ही होगा, और जो ये 6 जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर रह जाएगा। यानी पहला जो क्वेश्चन आपका है कि व्हेन दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 व्हाट इज द रिमाइंडर, वहां पे आपका आंसर आएगा 6। एक नंबर जिसको आपने 45 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आया, उसको 15 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 6 आएगा। एक नंबर जिसको आपने 45 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आया, उसको 15 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 6 आए। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई अलजेब्रा से करना चाहता है कर ले कि भैया 45k प्लस 6 बाई 15, तो देखोगे दिस विल बी 45k बाई 15 प्लस 6 बाई 15। दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द इंटीजर वैल्यू, ये आपका 3k प्लस 6 बाई 15, करेक्ट ना? तो दिस इज गोइंग टू बी योर रिमाइंडर आंसर। सेकंड बोलता 5 से डिवाइड करें, तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि 45 के अंदर ही 5 है। 45 का ही फैक्टर 15 था, 45 का ही फैक्टर 5 है, तो अभी भी आंसर सेम आएगा, अभी भी आंसर 6 आएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल आंसर है? व्हेन यू डिवाइड
दैट नंबर बाई 5 योर रिमाइंडर इज 6। जब आप किसी चीज को 5 से डिवाइड करते हो ना, आपके रिमाइंडर्स क्या होते हैं? बस ये रिमाइंडर हो सकता है, रिमाइंडर कैन नॉट बी 6। ठीक है, तो अब क्या करें? अब तो रिमाइंडर 6 आ गया है, क्या करें? भगा दे उसको घर से? नहीं, 6 को फिर से 5 से डिवाइड करो। क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। आप एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे 51 एक नंबर है, इसको आप 45 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा था? 6। और इसको आप 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। असल में 6 ही आता है, लेकिन मजबूरी के तहत वो 1 हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, 3 से डिवाइड करना है, वो नंबर 45 के प्लस 6 फॉर्म का है, 3 से डिवाइड करोगे तो फिर रिमाइंडर 6 आएगा। अब जब रिमाइंडर 6 आएगा तो 6 रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है, तो आंसर 0 हो जाएगा। और एलजेब्रा से करना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि यू कैन टेक 3 कॉमन हियर। आप खुद 3 इसमें कॉमन ले सकते हो। जब 3 कॉमन आ सकता है, यानी ये जो नंबर था वो 3 का मल्टीपल निकला, 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 3 का मल्टीपल निकला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ही इत्मीनान से करना चाहिए बच्चों को। ये वो पार्ट है ना जो हम लोग भी कैट की तैयारी कराते वक्त स्पीड में, पेस में भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो 2-3 वीडियोस बन रही है हमारी, उसको आप इसलिए पढ़ें कि आपको चीजें समझ में आए, है ना? वो तो आप करने वाले हो नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24। ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगने वाला है, 10-15 मिनट लगेगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट लो और आंसर क्या करो, आप मुझे भेज दो। किस पे? कमेंट्स पे। ठीक है, कमेंट्स मुझे चाहिए ढेर सारे, अच्छे या बुरे कमेंट्स चाहिए मुझे, तो आप कमेंट्स पे भेज दो इसके इसके जवाब क्या होंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप भेजो, इसको समझने की कोशिश करो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। यस, चूंकि हम लोग को स्लॉट 1 में क्वेश्चन मिल गया था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 में कितना जीरो है, अप टू 100 था। ठीक है, तो मैंने कहा था पिछले क्लास में कि आप जो 10 बनता है, यानी जीरो जो बनता है वो 10 से बनता है। 10 जो है उसके माँ बाप का नाम है 2 एंड 5। 2 और 5 पे आपको पैनी नजर रखनी है। क्या रखनी है? पैनी नजर, कि 2 और 5। तो इस सवाल में जो लास्ट वीडियो में है उसमें 2 बहुत ज्यादा है, प्लेंटी में है, तो हमने अपना नजर किस पे रखा? 5 पे रखा था। लेकिन अभी यहाँ पे 3 सवाल है, 3 सवाल है, तो हमें देखना होगा कहीं 2 की कमी तो नहीं है। 2 और 5 में जो कम होगा, 2 और 5 में जो कम होगा वो आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2 4 6 8। ठीक है, 2 4, तो हमें 2 काउंट करना है, 2 बहुत सारे मिलेंगे, 5 काउंट कर लेते हैं। तो 2 में से 2 को मैं 2 लिखूं, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिखूं, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिखूं, 8 को मैं 2 इंटू 4 लिखूं, ऐसे अगर चलता जाऊं मैं, तो आखिर में मैं 100 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 50 लिखूंगा। करेक्ट है, बहुत सारे 2 हैं, आप 2 कॉमन ले सकते हो, बहुत सारे 2 हैं, आप 2 कॉमन ले सकते हो, मैंने ले लिया कॉमन। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आपने 2 कॉमन लिया है, 2 का पावर 50 लिख दिया है, गड़बड़ है। चलो, इसी बहाने आपको पढ़ाने का मौका मिलता है मुझे, और इसी बहाने आप चुपचाप से मेरे वीडियोस देखते हो। अगर जिंदगी ने आपको घुटनों पे लाके खड़ा ना कर दिया होता ना, आप जिंदगी में मेरी ये बकबक नहीं सुन रहे होते, वो भी यूट्यूब पर। ठीक है, कैट, जैट, जी मैट, इनमैट, लास्ट में एक्ससीएमटी, वो भी एग्जाम कैंसिल हो गया, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इतना लोचा, एंड नाउ यू आर लिसनिंग टू माय बकबक, राइट? तो जिंदगी ने आपको घुटने पे लाके कर दिया है, आपको वो चीज सिखाना चाह रही है जो अक्लमंद लोग बिना दर्द के सीखते हैं, है ना? बेवकूफ लोग उसे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि कैसे हुआ? अगर प्लस का साइन हो, अगर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 हो, प्लस डॉट 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 लास्ट में 100 हो,
अगर बीच में प्लस का साइन हो तो वो जो कॉमन वाला आप वर्ड यूज करते हो ना, देखो मैं दिखाता हूँ छोटा सा एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3x है, आप x कॉमन लेंगे बड़े मजे में 2 प्लस 3 आएगा, डन डील है। आप 2x इंटू 3x है, बड़े मजे में आप x कॉमन लेंगे 2 इंटू 3, नॉट डन डील है क्योंकि यहाँ पे असल में x कॉमन लिया ही नहीं गया है बल्कि x इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे आंसर x स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जितने 2 थे मैंने ले लिया, अंदर में बचा 50 फैक्टोरियल, राइट। सो आपका 2 का पावर 50 इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, रीजन इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि 50 फैक्टोरियल के अंदर भी ढेरों 2 मौजूद हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं दूसरे के हॉस्टल में जाके अपने पार्टनर ढूंढें। तो यहाँ पे आपको 5 चेक करना है, मुझे आंसर रटा हुआ है शायद 50 तक, शायद हमारे पास 12 5 मिलेंगे। ठीक है, 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने बार 5 आएगा देखने के लिए 50 बाई 5 करें और 50 बाई 25 करें और उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लें। 50 चूंकि 5 का मल्टीपल है इसलिए आसान हो जाता है, 50 बाई 5 10 है और 50 बाई 5 25 2 है, 12 है। अगर आपको ये मेथड नहीं पता आप जाके सीखें। एक चीज और सीखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। मैं वो क्वेश्चन यहाँ करना भूल गया, जैसे आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर स्लॉट 1 में उन्हें जीरो वाला क्वेश्चन दिया है, अगर स्लॉट 1 में उन्होंने जीरो वाला क्वेश्चन दिया है तो स्लॉट 2 में पक्का, अगर स्लॉट 1 में उन्होंने जीरो वाला क्वेश्चन दिया तो स्लॉट 2 में पक्का हो सकता है क्वेश्चन जीरो का हो या हाईएस्ट पावर ऑफ 6 हो। अब देखो 50 फैक्टोरियल में आपको जब 6 का हाईएस्ट पावर निकालना होगा तो आपको 6 का फॉर्मूला ऐसे आप नहीं लगा सकते जैसे मैंने लगाया। ठीक है, अगर आपको कह दे कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ, बड़ा हड़बड़ाते हो तुम लोग, आराम से पढ़ाने दो। ठीक है, तो आप याद रखना 6 के लिए वो फॉर्मूला नहीं है, यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस, क्योंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 लगाएंगे, आप 2 निकालेंगे, हाउ मेनी 2s आर देयर इन 50 फैक्टोरियल बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, एंड हाउ मेनी 3s आर देयर इन 50 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली 3 कम होएगा और 2 ज्यादा होगा, तो 3 और 2 मिलकर के 6 बनता है। जब बात कॉम्पोजिट नंबर की होती है तो आपको उसके अंदर प्राइम नंबर ढूंढना होता है, ये एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसको पढ़ाया, आप कमेंट में लिख के बता दो क्या मैं इसको पढ़ा दूं पूरा डिटेल में 3 दिन तक। ठीक है यहां पे क्या होगा कि आपको बस 50/3 करना है, 50/3 स्क्वायर करना है और 50/3 क्यूब करना है। 50/3 का पावर 4 तो करना नहीं क्योंकि वो आगे निकल जाएगा, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह मेरी पलकें, तो ये 50/9 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, ये 50/3 कितना होगा 16.66, हाँ तो उधर 16 निकल के आएगा, 15/9 45, तो 9 5 आएगा, 9 बचे 27 दूनी के 54 एक आएगा, तो 16 + 5 21 22, यानी 50 फैक्टोरियल के अंदर 3 के 22 पावर हैं। अनबिलीवेबल आप कहोगे, अनबिलीवेबल व्हाटएवर, यानी कि अगर 50 फैक्टोरियल को हम 3 के पावर 22 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल आते हैं, ये जो पढ़ा है वो जानता है, जो नहीं पढ़ा है उसको लगेगा कि सर समझा दो अच्छे से, नहीं आप जाके इसको पढ़ लो या मुझे कमेंट में लिख के बोलो कि ये पढ़ा दिया जाए आपको। ठीक है, तो इसमें जो है जब आपने देखा कि क्वेश्चन में 6 पूछ लिया है तो आपने 6 को तोड़ा 2 और 3 में, आपने 2 को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया क्योंकि 2 बहुत है मार्केट में। ठीक है, पनीर की सब्जी कम पड़ रही है, रोटी तो सस्ते मिल रहा है, तो आपने 3 पे फोकस किया कि भैया आप ही कम हो और फॉर्मूला आपने 3 पे लगा दिया। जब आपसे कोई जीरो बोलता है तो जीरो बनता है 10 से और 10 के अंदर 2 और 5 होता है, 2
प्लेंटी में मिलता है, बहुत मिलता है, तो हम लोग 5 पे फोकस करते हैं। और फॉर्मूला जो लगाया था पिछले वाले वीडियो में, वहां पर आपने देखा होगा 100/5 एंड 100/5², ये लगाया था हम लोगों ने, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ। तो ये एक तरीका होता है। चलिए, हड़बड़ाहट में आपको पढ़ाना पड़ता है, अच्छा लगता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको निकालना है जीरो एट द एंड। जीरो एट द एंड को तीन तरह से एग्जाम में कहा पूछा जा सकता है। एक तो जीरो एट द एंड, दूसरा ट्रेलिंग जीरोस, तीसरा वो बोलेगा हाईएस्ट पावर ऑफ 10। तीन तरीके से वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है हाईएस्ट पावर ऑफ 10। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे आप, 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, कोई फैक्टोरियल नहीं है इसमें, 60 है, 65 है। तो आपको काउंट करना है उंगलियों पे। एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन द सेकंड स्लॉट, यानी 9 फरवरी वाले XCMT में आपको काउंट करना है उंगलियों पे कितने टूज है। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, इसमें 2 है। कितना 2 है देखो, 40 को 2 से डिवाइड करो 20, फिर 2 से डिवाइड करो 10, फिर 2 से डिवाइड करो 5, यानी इसमें 3 2 है। 50 को 2 से डिवाइड करो 25, एक ही 2 है। 60 को 2 से डिवाइड करो 30, फिर 2 से डिवाइड करो 15, अब डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 कितने हैं 6, 5 कितने हैं 5, अगर 6 से ज्यादा हैं तो 2 कंट्रोलिंग फैक्टर मिलेगा। पहली दफा 2 को इज्जत मिल रही है मार्केट में, ठीक है। तो 5 देखिए, यहां पे 5 कितने हैं, 2 बार 5 आ रहा है, 2 है 5 और 5। यहां पे 5 कितने हैं, 5 7 जा एक बार। यहां पे 5 कितने हैं, 5 8 जा एक ही बार। 50 में 5 कितने हैं, 2 बार। 60 में 5 कितने हैं, एक बार। 65 में बहुत सारे 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है 6 ट्रेलिंग जीरोस। अगर मेरे से कोई यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखें आपसे मिस्टेक ना हो। अगर आपको सही चीज पता है कि मैंने कोई गलती कर दी, आंसर 5 है 6 बोल दिया, आंसर 6 है 7 बोल दिया, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही, क्लास नहीं चल रहा जूम पे, तो आप क्या करेंगे, कमेंट में उसको सही कर देंगे, ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज थी और इसीलिए 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अगर आपका प्यार मिलता रहा, ढेर सारा सपोर्ट मिलता रहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक एवरेज का और एक टाइम एंड वर्क का वीडियो बना दूं। 2 दिन अभी बचे हैं ना, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को तो हम लोग ऐसे भी कुछ और डिस्कशन करेंगे। सो 10 20 30 40 1000 था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना सब में से 10 निकाल लें, फिर से वैसे ही कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, सब में से 10 निकाल लें, तो आखिरी में क्या बचेगा, 10 इंटू 100। फिर सारे 10 को जमा करें तो 10 का पावर 100 हो गया, इंटू अंदर क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहां तक गया, 100 तक। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है वो, 10 का पावर 100 है और राइट हैंड साइड में 100 फैक्टोरियल है। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो असल में 10 का पावर 100 है और इंटू 100 फैक्टोरियल है। इसके अंदर, ये तो क्वेश्चन आया था XGMT में, इसके अंदर 24 जीरो होते हैं, रट के जाओ, इसके अंदर 24 जीरो होते हैं और इसके अंदर आप बताइए कितने जीरो हैं, इसके अंदर 100 जीरो है। और मल्टीप्लिकेशन वाले मामले में जीरो ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन वाले मामले में जीरो ऐड होता है, तो इधर का 100 जीरो, उधर का 24 जीरो, आपका आंसर होगा 124 जीरोस, 124 जीरोस, ठीक है। तो देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसा हुआ है और आप जो है यूट्यूब में इसको फॉरवर्ड करें, दूसरे को दिखाएं। चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वेरी डीमोटिवेटिंग है। नए नए चैनल आ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मैं देखते रहता हूँ बैठे बैठे, ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, विच इज नॉट गुड। थैंक यू एंड गुड नाइट।